So, dear students, let's continue. Sum number 7. NEET 2018 Part 2. A battery consists of a variable number of N cells whose internal resistance is R, are connected in series. आपके पास batteries है. All batteries are identical. They are identical batteries and they are connected in series. The terminals of battery are short circuited and the current I is measured, which is the correct graph. तो उसमें कौन सा ग्राफ करेक्ट रहेगा? मतलब बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज मतलब ऐसा देखो, एक बार सपोज आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. तो व्हेन द सेल्स आर इन सीरीज then EMF will be added and current remains same. I hope you got it. I repeat, when cells are in series, then EMF will be added and current remains same. And if the cells are in parallel, अगर ऐसा parallel रहेगा बाजू बाजू में, मतलब ऐसा 1 by 1 नहीं रहेगा, ऐसा बाजू बाजू रहेगा, एक ऐसा एक यहाँ पे एक ऐसा पे. So if the cells are in parallel, then current will be added and EMF will remain same. I hope you got it. इसमें क्या दिया आपको कि सीरीज में, तो जब सीरीज में रहेगा then EMF will be added. एक सेल का EMF E, 2 का 2E, 3 का 3, और if there are N cells, it will be NE. It will be N times E. So it will be N times E. I hope you got it. Now, you know E equal to IR. But I current remains same and the resistance will be added in series, so it will be equal to Rn. So formula क्या होगा? Ne is equal to I times Nr, and therefore current I will be, यहाँ पे now देखो I will be equal to Ne upon Nr and gets cancelled. It is E by R. It is E by R, and hence we can say the current I is independent of N. I is independent of N, and therefore answer will be third. It doesn't depend upon N, so answer will be third. It is independent. और वैसे भी आपको मैंने कहा था, if the cells are in series, then please remember current remains same. तो चाहे आप 2 सेल हो, 5 सेल हो, 10 सेल हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. तो एक बात आप याद रखेंगे, when cells are in series, EMF are added, current remain constant. When cells are in parallel, then currents are added and EMF remain same. I hope you got it. Pakka. See the next part. Unpolarized light. Unpolarized light is incident from air on a plane surface of a material of refractive index mu. कोई unpolarized light है. What do you mean by unpolarized light? A light in which the waves or the rays they vibrate in all possible directions. It is called as unpolarized light. Light is coming from sun, bulb, tube light, etc. All are unpolarized light. So when unpolarized light is passing through air and falls on the surface of glass whose refractive index is mu at a particular angle of incidence I, then angle of incidence is I. It is found that the reflected ray and reflected ray are mutually perpendicular. Find the correct option. Remember, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे, कभी भी स्टेटमेंट दिया रहेगा कि reflected ray and reflected ray are mutually perpendicular, तो याद रखने का ये ब्रूस्टर्स लॉ इज obeyed. So देखो ये डायग्राम आपका, इसको बोलते हैं unpolarized light, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको बोल देंगे पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि इसके अंदर एक प्लेन जाएगा, बाकी सब के सब प्लेन्स है वो ये साइड में मिलेगा, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. आई होप यू गॉट इट. एन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. कितना एंगल बीच में है? उनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. सो एंगल बिटवीन देम विल बी इक्वल टू 90. ये है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट. इसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन is parallel to the plane and therefore electric vector will be perpendicular to the plane. Electric vector will be perpendicular to the plane. ये मत याद रखना.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन विल बी पैरेलल टू द प्लेन, ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो उसमें परपेंडिकुलर रहेंगे। सो आपको समझा आपको। सो रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज्ड, refracted ray is partially polarized and angle between them is 90 and electric vector is perpendicular to the plane. So the answer will be second. Reflected light is polarized with the electric vector perpendicular to the plane of incidence. Actually Brewster's law क्या होता है? mu equal to tan I. Brewster's law is equal to mu is equal to tan IP or we can say IP. तो पहला इसलिए रॉन्ग है कि ये साइन में दिया रहेगा, एक्चुअली ये तो क्रिटिकल एंगल है, आई होप यू गॉट इट, तो इसलिए रॉन्ग हुआ। ये पहला इसलिए ये रॉन्ग हुआ और ये उल्टा हो गया, ये दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट 1 बाय म्यू होना चाहिए, म्यू इक्वल tan IP, तो ये इसलिए रॉन्ग है। सो आंसर विल बी म्यू इक्वल टू tan IP। सो क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर्स लॉ। व्हाट इज द ब्रूस्टर्स लॉ? एट द पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular to each other and tan of polarizing angle is equal to refractive index of refracting surface at which partial reflection takes place, I hope you got it. Pakka? Say please. In Young's double slit experiment, distance between the two sources is 2 mm. Wavelength lambda equal to 5896 angstrom. Capital D equal to, distance between the source and screen is 100 centimeter. Angular width of fringes is 0.20 degree. To increase the fringe angular width to 0.21 degree, change in slit width will be, I repeat, Young's double slit experiment. स्मॉल डी कितना दिया है? 2 mm। कितना दिया है? 2 mm। वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन, व्हाट इज कैपिटल डी? हमेशा के लिए डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी 100 सेंटीमीटर। एंगुलर विड्थ आपको दिया है कितना? 0.20। अगर आपको एंगुलर विड्थ बढ़ाना है 0.21 तो मतलब चेंज इन विड्थ कितना होगा? मतलब आपको चेंज इन द स्लिट विड्थ निकालना है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले मतलब फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ, x is equal to lambda capital D upon small d. What is x bandwidth? What's the bandwidth? Distance between two successive bright or two successive dark bands. What's the bandwidth? Distance between two successive bright, two successive dark bands. So x equal to lambda capital D upon small d. Capital D upon small d. What's capital D? The distance between source and screen. Small d. Distance between the two slits. अच्छा एक काम करो, d को यहाँ ट्रांसफर कर दो, x बाय कैपिटल D is equal to lambda upon d। अच्छा ये सामने x रहेगा, d रहेगा, तो you know what is tan theta? Tan theta is opposite upon adjacent, but if theta is very small then tan theta is theta, so theta equal to x by d। ये जो theta है उसको हम लोग बोलेंगे angular width। तो x by d क्या हो गया? Angular width। So angular width मतलब x by d। x by d की वैल्यू कितना? lambda by d। So angular width equal to lambda by d। ये आपका फॉर्मूला जाएगा। अभी फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द एंगुलर विड्थ इज थीटा कितना दिया? 0.20, सो लैम्बडा बाय 2, तो इसे आप लैम्बडा निकाल लो, सो लैम्बडा विल बी 0.40। आई होप यू गॉट इट। लैम्बडा मिल गया। अभी सेकंड कंडीशन कि व्हेन द थीटा इज 0.21, तो वो तो कैपिटल एस कितना होगा? थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन डी डैश, देयरफॉर डी डैश विल बी लैम्बडा अपॉन थीटा डैश। लैम्बडा कितना दिया है? 0.40 अपॉन थीटा डैश कितना? 0.21। अगर आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.19 mm। आई होप यू गॉट इट। कोई डाउट आपको? तो रिमेंबर एक बात और याद रखो, व्हाट इज बैंडविड्थ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और टू सक्सेसिव डार्क बैंड। Bandwidth is directly proportional to wavelength. Bandwidth is directly proportional to the distance between the source and screen, and bandwidth is inversely proportional to the slit width. Distance of 10th bright band 10x, distance of 10th bright band 10x, and distance of 10th dark band 9.5x. हमेशा 0.5 कम करने का। एक बार फिर distance of 20th bright band 20x, distance of 20th dark band 19.5x. I hope you got it. Dark band 0.5 कम करने का। Is that clear? Next, number 10. In an astronomical refracting telescope,
will have large angular magnification and high angular resolution when it has an objective lens. तो बताओ अगर आपको दो चीज चाहिए, लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए और हायर एंगुलर रेजोल्यूशन चाहिए, तो बताओ ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में आप क्या बोलेंगे? सबसे एंगुलर रेजोल्यूशन मतलब मैग्निफिकेशन, it is f/fe. FO is called as focal length of object lens, FE focal length of eyepiece. आपको समझा? m equal to FO/FE. मैग्निफिकेशन कब बढ़ेगा? when FO is large. FO is large. Is that clear? Second, angular resolution. Nothing but what? d/1.22 lambda. He is called as diameter. तो अगर आपको एंगुलर रेजोल्यूशन बढ़ाने हैं तो कैपिटल डी को बढ़ाना पड़ेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल डी बढ़ना चाहिए और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा होना चाहिए. सो व्हाट्स योर आंसर? लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर. आई होप यू गॉट इट. कोई डाउट? सी प्लीज. Number 11. The ratio of kinetic energy to the total energy of an electron in a Bohr orbit of hydrogen atom is. The ratio of kinetic energy to the total energy of an electron in a Bohr's orbit of hydrogen atom will be equal to. Now see please. अब हम क्या करते हैं कि I tell you one important things. एक आपको मैं रिडल पूछता हूँ थोड़ा सा ब्रेक के लिए, और वो ब्रेक है नंबर 1. मैरी के पापा की 5 बेटियां हैं. मैरी के पापा की 5 बेटियां हैं और उन्होंने एकदम सोच समझ के नाम लिखा है. तो उन्होंने पहली बच्ची का नाम दिया है मीना, दूसरी बच्ची का नाम दिया है टीना, तीसरी बच्ची का नाम रखा है सीना, चौथी बच्ची का नाम रखा है लीना. तो बोलो उनकी 5वीं बच्ची का क्या नाम होगा? ये आपको मुझे बताना है. आई होप यू गॉट इट. आप यहां सोच के टेक योर टाइम एंड लेट मी नो दिस. सेकेंड थिंग, एक और क्वेश्चन. मोबाइल जो आपका हैंडसेट है, सेल फोन है, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं. आपको ये बताना है उन सब नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा. मोबाइल नंबर के ऊपर जो डायल पैड है उस पर जितने भी नंबर है और उस नंबर पे जितने भी नंबर है उन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो. तो मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना आंसर मिलेगा ये आपको इन्फॉर्म करना है. और इसके बाद में आई विल गिव यू one more question after some time. आपको रूल्स तो मालूम ही होगा. आपको टोटल 10 वीडियो देखना है. इसके पहले एक वीडियो था, आप जरा चेक कर लीजिए, 2018 पार्ट 1. उसमें मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे. ये आपका सेकेंड वीडियो है. टोटल आपको 10 वीडियो देखना है, 30 आंसर देना है और हर एक वीडियो का आपको 3 सब्सक्रिप्शन मतलब 3 अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों को सब्सक्राइब करवाना है और उनका मुझे नंबर डाल देना कि सर ये नंबर मैंने अपने फ्रेंड्स का आपको दिया है और उन्होंने सब्सक्राइब किया है. तो ऐसे आपको 10 वीडियो तक मेरे साथ चलना है एंड डेफिनेटली आई गिव यू प्राइज फॉर इट. सो एक्चुअली ये मेरा मेन इंटेंशन क्या है कि पीपल शुड सी मोर एंड मोर. उनको मुझे मोटिवेट करना है एंड ऑब्वियसली जब आप इतना वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली आपका फिजिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा. और डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स पढ़े. तो खाली आपके बीच में ब्रेक के लिए ही मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा और ये क्रम चलता रहेगा और आप पढ़ते भी रहेंगे और आप साथ में वीडियो भी देखेंगे. सो ये आपको लगातार 10 वीडियो देखना है. आपको मुझे 30 आंसर्स देना है. आई होप यू गॉट इट. चलते हैं वापस सम नंबर 11 पे. द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम of an electron in a Bohr orbit of hydrogen atom is. Okay. सबसे पहले what is the relation between kinetic energy and total energy? ये आपको important thing है. देखो ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था, अलग से पूछा था. मैं आपको फिर एक बार वापस रिलेशन. kinetic energy is half of potential energy with minus sign. मतलब K equal to minus of half of potential energy. Is that clear? Again, total energy is equal to potential energy.
Is that clear? Total energy equal to potential energy. Is that clear? Now इसका मतलब kinetic energy is equal to minus of total energy. आपको याद रखना है, तो कुछ रिलेशन आपको कंफर्म याद रखना है. सो kinetic energy equal minus total energy, आप उसको डिवाइड कर दो. सो K upon T equal to 1 upon minus 1, मतलब 1:-1. So answer is second. I hope you got it. I mean to say नीट के अंदर एक्चुअली फॉर्मूले बहुत इजी पूछते हैं, सब बहुत इजी पूछते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है. अगर आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे पूरे साल भर के लिए, आई एश्योर यू कैन गेट गुड मार्क्स. लेकिन कंडीशन ये है कि परसिवरेंस शुड बी मेंटेन्ड. आई मीन टू से आपको लगातार पढ़ना है. ये नहीं बोलूँगा कि केवल आपको फिजिक्स ही पढ़ना है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको डेली नॉन स्टॉप पढ़ना है बिना कोई ब्रेक के. मतलब कोई बीच में बड़ा ब्रेक नहीं होना चाहिए. तो ये बात अगर आप नॉन स्टॉप चलते रहेंगे, ऑब्वियसली 7 दिन छुट्टी के बाद में 7 दिन के बाद में आप एक दिन ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन अगेन रिमेंबर कि वो ब्रेक छोटा ही होना चाहिए, सो दैट यू शुड कंटिन्यू. और ये 2 साल का आपको टाइम मिलता है. अगर आप चाहे तो आदमी कितना भी अच्छे मार्क्स लेकर सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए. I hope you got it. So let's move to the next part. For radioactive material, half-life is 10 minutes. If initially there are 600 number of nuclei, the time taken for the disintegration of the 450 nuclei is, पहले कितना था? 600 न्यूक्लिया थे, अभी कितना है? 150, क्योंकि 450 डिसइंटीग्रेट हो गया तो बाकी कितना बचा? 150. हाफ लाइफ कितना है? 10 मिनट्स. तो बताओ कि ये 450 डिसइंटीग्रेट होने के लिए आपको टोटल कितना टाइम लगेगा? वैसे आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम मिलेगा, n equal to n0 e raised to minus lambda t. आई होप गॉट इट. ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा आप लास्ट फॉर्मूले पे आते आते. देयरफॉर आई हैव टू गिव यू द रेडीमेड फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेडियोएक्टिविटी के लिए. अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट पहले कितना था? 600. कम कितना हुआ? 450. बाकी बचा कितना? 150. तो ये 150 क्या होगा अभी एट ए गिवन मोमेंट, मतलब n इज इक्वल टू 150 और n0 इज इक्वल टू 600. आई होप यू गॉट इट. अब ये फॉर्मूला लिखो, n by n0 equal to 1 by 2 into t upon half life. t upon half life, ये t मतलब क्या हुआ? टोटल टाइम, और ये कैपिटल t क्या हो गया? हाफ लाइफ. इज दैट क्लियर? ओके. अभी कितना बचा? 150. टोटल कितना था? 600 इक्वल टू 1 by 2 into t by t0, 154 times, so 1 by 4. So 1 by 4 is equal to 1 by 2 raised to t by capital T. अच्छा, दोनों का बेस को सेम करना है, तब जाके आप जो इंडेक्स नंबर है उसको आप इक्वेट कर सकते हैं. तो 1 by 4 कैन बी रिटन एज 1 by 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 by 2 रेज टू t by कैपिटल T. इक्वेट कर दो. सो 2 इक्वल टू t by t. सो कैन यू सी फ्रॉम हियर इक्वल टू t by t इक्वल टू 2. So t equal to 2 into capital T. And what is capital T? Half life 10 minutes. So 2 into 10, that's equal to 20 minutes. I hope you got it. पक्का, एकदम पक्का. Now see please. When the light of frequency 2 nu 0, ये न्यू जीरो का आपको क्या है? फ्रीक्वेंसी. इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. आई रिपीट, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 nu 0 इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज v1. जब आप फ्रीक्वेंसी 2 nu 0 इंसिडेंट करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी v1 है. व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 nu 0, देन vmax will be equal to v2. तो फाइंड द रेशियो ऑफ v1 by v2. सबसे पहले what do you mean by threshold frequency? The minimum frequency at which electrons are emitted is called as threshold frequency. The minimum frequency, जिस minimum frequency पे electrons eject हो जाएंगे metal surface से, उसको आप बोलेंगे threshold frequency. I hope you got it. Threshold frequency. The minimum frequency at which electrons are ejected is called as threshold frequency. Called as threshold frequency.
आई होप यू गॉट इट आउट. ओके, ये एक्चुअली क्वेश्चन किसका है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. व्हाट डू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द phenomenon of emission of electron. The phenomenon of emission of electron from a photosensitive material. From a photosensitive material when it is exposed to UV light rays. Exposed to UV light rays having frequency equal or greater than threshold frequency. Actually the more appropriate word is greater than, क्योंकि जब equal रहेगा ना तो खाली उसको dislocate कर पाएगा. और the minimum amount of energy required to dislocate is called as work function. Called as work function. तो ये work function 50 मतलब minimum amount of energy required to dislocate electron from the metal surface is called as work function. So total energy utilized is used in two ways. पहले उसको हल्का सा अपनी जगह से डिसलोकेट करना पड़ेगा. उसके बाद में जो रिमेनिंग एनर्जी है that will be used to produce kinetic energy, and therefore amount of energy incident is equal to 50 plus half mv square. I hope you got it. अच्छा, E का वैल्यू h nu frequency और phi का वैल्यू h nu 0 when nu 0 is called as threshold frequency. तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना दिया आपको पहले फर्स्ट कंडीशन में 2 nu 0. तो पहले इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 2 nu 0 इक्वल टू h nu 0 प्लस हाफ m. वेलोसिटी इज v1 स्क्वायर. तो h nu 0 यहाँ ट्रांसफर कर दो. 2h nu 0 माइनस h nu 0 will give you h nu 0 इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर. बाय सेकंड कंडीशन, अभी सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि this becomes 5 times. So 5 nu 0 equal to h nu 0 because work function is h nu 0 plus half mv2 square. ये h nu 0 वहां पे जाएगा तो 4h nu 0. So 4h nu 0 equal to half mv2 square, equation number 2. Now अब क्या करो, कंडीशन को डिवाइड करो, डिवाइडिंग 1 by 2. So we have h nu 0 divided by 4h nu 0 equal to half mv1 square upon half mv2 square. h nu 0 gets cancel 1 by 4 equal to v1 square upon v2 square. Taking square root v1 by v2 equal to 1 by 2 equal to 1 by 2. I hope you got it. पक्का ना सके. In the circuit shown in the figure, the input voltage V1 is 20 volt. VB मतलब potential between base and emitter is 0. इसके बीच में कितना potential है? 0. VCE equal to 0. ये आपको VC दिया हो, कितना दिया आपको? Potential between the collector and emitter, इनके बीच में कितना दिया है आपको? 0. The value of IB, IC and beta are shown by. देखो ये VCC है, कितना दिया है? 20 वोल्ट. कितना दिया है? 20 वोल्ट. ये आपका इनपुट पोटेंशियल है जो आपको फाइंड करना है. इनपुट इज दैट क्लियर? देन ये RC लोड रेजिस्टेंस कितना दिया है? 4 किलो ओम, 4000. ये इनपुट रेजिस्टेंस है कितना? 500 किलो ओम. आई होप यू गॉट इट. और ये आपका कैपेसिटर, ये आपका बेस एंड ये आपका एमिटर. आई रिपीट, कैपेसिटर, कलेक्टर, बेस, एमिटर. अच्छा, कलेक्टर चार्जेस, एमिटर चार्जेस. अगर मान लो इसके अंदर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दिस ट्रांजिस्टर. एक का नाम है PNP, दूसरे का नाम है NPN. NPN मतलब नॉट टू पुट इन, मतलब आउटसाइड. तो अगर आउटवर्ड मतलब वो NPN है और अगर इनवर्ड है तो वो PNP है. अगर बाहर जाएगा तो NPN, अंदर एरो रहेगा तो PNP. इज दैट क्लियर? नाउ हमेशा इनपुट इज अप्लाइड एट द बेस एंड आउटपुट इज कनेक्टेड अक्रॉस द कलेक्टर. इज दैट क्लियर? नाउ अभी ये आपको दिया है VCC 20 वोल्ट, RC 4 किलो ओम, RB 500 किलो ओम. इनपुट पोटेंशियल VI. ये आपका बेस एमिटर जो आपको दिया है 0. कलेक्टर एमिटर जिसे आपको दिया है 0. तो आपको देखो इसका वैल्यू निकालना है. इज दैट क्लियर? सबसे पहले ध्यान दो व्हाट इज गिवन टू यू. VBE 0, VCE 0 and potential at base is 0. IC, what is IC? Collector current. अभी IC का फॉर्मूला क्या होता है? What's the formula for current? V equal to IR. V equal to IR. So I will be equal to V upon R.
तो इसका पोटेंशियल कितना दिया है V20 और VC कितना दिया है 0, कैन सी, तो 20 माइनस 0 20 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है 4 किलो ओम, सो 4 इंटू 10⁻³ तो हो गया आपका 5 इंटू 10⁻³ इज 5 मिली एम्पियर। ऐसे कितना मिला 5 मिली एम्पियर। तो आपको दो ऑप्शन हो सकता है 1 2 3, तीनों के अंदर 5 है। अब आपको और जोड़ना पड़ेगा। अब देखो व्हाट इज द इनपुट पोटेंशियल VBE प्लस IB इंटू RB। देखो यहाँ जो पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके बीच में एक तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका नाम है VBE प्लस IB इंटू RB। सो V इनपुट इक्वल टू VBE प्लस IB RB। अच्छा VB कितना दिया आपको 0 प्लस IB इंटू RB, तो VI कितना दिया आपको 20 वोल्ट, VI इक्वल टू 20 वोल्ट, जो यहाँ पे कितना दिया VI 20 वोल्ट, तो यहाँ आपको 20 वोल्ट दे दिया है, इक्वल टू IB आपको फाइंड करना है और RB 500 किलो मतलब 500 3, IB will be 20 upon 500 into 10⁻³ 0 0 कैंसिल, ये 50 है, 2 से मल्टीप्लाई इधर करो, 2 से ऊपर करो, 2 ऊपर करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे 100 मतलब 10⁻², ऊपर जाएगा तो -2, तो 14 -2 तो होगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻5 मतलब 40 इंटू 10⁻⁻6 that is 40 माइक्रो एम्पियर। कितना 40 माइक्रो एम्पियर। आई होप यू गॉट इट। ये -3 क्योंकि 500 किलो ना, तो 5 10⁻³ ऊपर जाएगा तो -3। इज दैट क्लियर? सो 10⁻⁻5 तो एक 4 इंटू 10⁻⁵, एक 0 और दे दो, 40 इंटू 10⁻6 मतलब 40 माइक्रो एम्पियर। अब निकलो बीटा वर्ड से बीटा, IC अपॉन IB, IC अपॉन IB मतलब इट इज करंट गेन, इट इज करंट गेन बीटा। सो IC कितना 25 इंटू 10⁻⁻³ आपको IC दिया है, 25 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन और IB अभी निकाला हम लोगों ने 40 इंटू 40 माइक्रोफेड 40 माइक्रो एम्पियर। सो 40 इंटू 10⁻⁶ कितना हुआ 125। आई होप यू गॉट इट। कोई डाउट आपको? 5 नहीं करेंगे, 5 इंटू 10⁻⁵, सो 125 ये आपको मिला बीटा। आई होप यू गॉट इट, पक्का? सो सम नंबर 16, in the PN junction diode change in temperature due to heating. First option doesn't if affect resistance of PN junction. Obviously जब आप हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होता है, बिकॉज PN जंक्शन है ना, तो आप हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूव एंड मूव, तो सेमीकंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है वो कम होता है, मतलब अफेक्ट करेगा। दूसरा अफेक्ट्स ओनली फॉर रेजिस्टेंस, नहीं दोनों को करता है। अफेक्ट्स ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस, नो दोनों को करता है। affect the overall VI characteristics of PN junction here. This is the answer. I hope you got it. Number 17. अच्छा उसके पहले let me ask you one question. The question is स्वप्निल दलवी सर के 3 बेटियां हैं। स्वप्निल दलवी सर की 3 बेटियां हैं और हर एक बेटी को 2-2 भाई हैं। दलवी सर को 3 बेटियां हैं और हर एक बेटी को 2-2 भाई है, तो बताओ दलवी सर के कुल कितने बच्चे हैं? ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। आप हर वीडियो देखते रहिए, आपको टोटल 10 वीडियो देखना है, 30 आंसर देना है और हर वीडियो के साथ में आपको 3 सब्सक्राइब भी ढूंढना है और एट द एंड ऑफ 10th वीडियो आई गिव यू गिफ्ट। सो वीडियो देखते रहिए, आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्रेस आउटपुट y इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो आपको ये देखना है कि इसका एक्सप्रेस करके कि इसका y क्या मिलेगा। ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, ये नॉट गेट है। अगर ये a है और ये a है और ये b है, अगर ये b है तो इसका नाम हो जाएगा आपका b बार और ये हो गया आपका a। अब इसका आपने एंड गेट बनाया, एंड मतलब डॉट, तो इसका नाम क्या होगा, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ये मिलेगा a डॉट b बार। आई होप यू गॉट इट। अच्छा वापस देखो ये a है तो ये a है तो इसका नॉट हो गया, नॉट होते वो उल्टा हो जाता है, इसका नाम हो जाएगा a बार, ये हो गया आपका a बार।
और ये इसका नाम है B। इसका आउटपुट क्या मिलेगा, A बार डॉट B। इसका यहाँ पे प्लस करना है, ये क्या है और गेट में प्लस करना है, तो प्लस क्या मतलब क्या हुआ, आपको क्या मिलेगा A डॉट B बार प्लस A बार डॉट B। इज इट क्लियर? तो देखो A डॉट B बार प्लस A बार डॉट B। आपको समझा क्या चीज? आपको देखिए एंड गेट में मल्टीप्लाई करते हैं, A डायरेक्टली आया तो A लिख दिया, B का उल्टा उसका इनवर्ट हो गया तो वो A B का B बार हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब डॉट, तो A डॉट B बार इसका आउटपुट मिल गया। सिमिलरली ये A जब यहाँ आएगा तो A बार हो गया और ये B एज इट इज B हो गया, तो उसको मल्टीप्लिकेशन, एंड गेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो A बार डॉट B, और उनका और गेट मतलब प्लस, तो A डॉट B बार प्लस A बार डॉट B। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, an electromagnetic wave is propagating in a medium with a velocity v bar is vi. Electric field on this is the electromagnetic wave is along y-axis. Then the direction of oscillating magnetic field of electromagnetic wave will be along. तो उसका कौन सा डायरेक्शन रहेगा? तो देखो E बार क्रॉस B बार इक्वल V बार। E बार जो है वो along y एक्सिस है और V है वो along x एक्सिस है, तो यू नो दैट आपको आई क्या कैसे मिलेगा, J बार क्रॉस K बार विल बी इक्वल I बार। अगर सपोज इफ यू सी दिस पार्ट, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट I कैप, दिस इज J कैप एंड दिस इज K कैप, तो I कैप क्रॉस J कैप K कैप, J कैप क्रॉस K कैप I कैप, K कैप क्रॉस I कैप J कैप। इज दैट क्लियर? तो J कैप क्रॉस डैश विल गिव I कैप K कैप, इसका मतलब ये B क्या होगा, K कैप। So B bar equal to B K bar. That means it is along x axis. I hope you got it. Next, the refractive index of the material of a prism is √2 and the angle of prism is 30 degree. One of the two refracting surfaces of the prism is made mirror inwards by silver coating. A beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path. What is angle of incidence? ये आपका प्रिज्म था, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है, ये साइड को आपने उसको पॉलिश कर दिया, ये बन गया मिरर। क्वेश्चन ये कि वापस ये पाथ रिट्रेस करना चाहिए। पाथ रिट्रेस कब करेंगे? जब ये इट फॉल्स नॉर्मली। इसका मतलब ये कंफर्म हो, ये नॉर्मली हो गया। अच्छा, यहाँ पे when the ray of light goes from rarer density bends towards normal, so denser to red bends away from normal, तो ये आपका away from normal हो गया, तो ये away हो गया। तो आपको फाइंड करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। ध्यान दीजिए, ये है आपका 30, ये 90, ये बच गया 60, बिकॉज 30 60 90 60 बचेगा। बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, तो ये 60 है तो ये कितना बचेगा 30, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30। इसका म्यू आपको दिया √2, आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्नेल से यूज करो, sin i अपॉन sin r इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ये पहला मीडियम मतलब म्यू इक्वल टू 1, सो sin i अपॉन sin r इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ये आपका स्नेल हो गया। sin i अपॉन sin 30 इक्वल टू μ2 √2 अपॉन μ1 1, तो sin 30 इज हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2 into half will give you 1 by √2. Sin I is 1 by √2, मतलब I is equal to 45 degree. I hope you got it. पक्का? See next. An object is placed at a distance of 40 cm from a concave mirror of focal length 15 cm. If the object is displaced through a distance of 20 cm towards the mirror, the displacement of the image will be, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, 40 सेंटीमीटर मिरर से है, फोकल लेंथ है उसका 15 सेंटीमीटर, उसका फोकल कितना दिया आपको 15 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? देन इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो ऑब्जेक्ट को बाद में पहले 40 था और 20 और अंदर लेके आ गए, मतलब ये अभी आप 20 पे आ गए। The displacement of image will be, आपको इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है। I hope you got it. तो आप यूज द मिरर इक्वेशन 1 by f equal 1 by v plus 1 by u। याद रखना ये कॉन्केव मिरर है, इसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव, तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव।
दूसरा ऑब्जेक्ट ऑलवेज टू बी प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट ऑल्सो विल बी नेगेटिव, तो यू भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव. इज दैट क्लियर नाउ? और v आपको फाइंड करना है तो v आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है. आई रिपीट, जैसे फर्स्ट आपको अगर v फाइंड करना हो तो v का साइन कन्वेंशन नहीं देने का. इज दैट क्लियर? सो -1/15 फोकल लेंथ इक्वल टू 1/v -1/40, क्योंकि u भी माइनस और f भी माइनस. अब ये 1/v यहाँ पॉजिटिव में है, ये साइड इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो ये 1/40 वहाँ जाएगा तो प्लस में, तो 1/40 माइनस 1/15, तो 1/40 माइनस 15, 40 और 15 का 43 120, एलसीएम ले लो 120, 120 डिवाइड बाय 43, 3 1 3 माइनस 120 डिवाइड बाय 15 8, सो 8, 3 माइनस 8 माइनस 5, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 4 24, तो माइनस 24, तो v का वैल्यू हो गया आपका -24 सेंटीमीटर. ये v मिल गया. अब when object is displaced by 20 सेंटीमीटर, पहले कितना था 40, अभी कितना डिस्प्लेस किया 20, तो ऑब्जेक्ट कितना मिला 20 मिला, तो इसका मतलब u इक्वल टू -20, माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में है. पहले था 40, अभी 20 से शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब अभी 20 रहेगा, तो नया ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो u टू -20. ओके, फोकल लेंथ आपको मालूम है 15 है ही, आपको फाइंड करना है v2, तो 1/f इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/u2, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -1/15 इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/20, ये -1/20 ये साइड में जाएगा तो प्लस में, प्लस बाई 1, 20 माइनस 1/15, 20 और 15 का एलसीएम 60. आई होप यू गॉट इट. तो ये आपका एलसीएम विल बी 60, तो 20 माइनस 60 5, तो ये आपका v2 का वैल्यू निकला. तो v2 कितना मिला -60, कितना मिला -60. आपको समझा? एलसीएम कितना हुआ 20 और 15 का 60, 60 डिवाइड बाय 23, 3 माइनस 4 माइनस 1 -1/60 -60. सो इमेज शिफ्ट अवे फ्रॉम मिरर बाय, पहले कितना था 24, अब कितना 60, शिफ्ट कितना हुआ 60 माइनस 24, दैट इज 36 सेंटीमीटर. आई होप यू गॉट इट. पक्का? सो विल स्टॉप हियर ओनली. सी यू नेक्स्ट टाइम. ओके.